The idea is that. Yeah, sorry, I forgot. So if I is less than equal to 1, I'm not going to put attempt of doing anything other than printing I itself. This would do the job of 0 and 1. अब यहाँ से आगे तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो चालू हो जाएगा, यानी कि अगर एल्स, यानी कि मेरा रेंज अगर 1 से ऊपर गया तो फॉर दैट आई वुड वर्क विद f0 f1 as 0,1 pairing basis, तो f0 0 है, f1 1 है. So else I'll be printing, now be careful for this one, f0 plus f1. सर मतलब लास्ट दो टर्म्स का एडिशन प्रिंट कर, राइट? बट at the bottom I would do this again. That's it, program is over. So now the question remains, what exactly happened, हम लोग ने क्या किया या क्या टारगेट पे चेंज. So if you intend to understand this particular concept कि क्या चेंज हुआ या किस तरह से हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, answer to that is this way. Suppose consider an user was given was something, let's say 5 terms. Now let us go with this, print this, and more important, this particular phenomenon. So sir, I start with 0. Yes, 0 gets printed. You go for the next run. 1 gets printed, nothing done. So 0 and 1 तो डायरेक्ट आ गया अपने पास जो अपना बेस था. अब स्टोरी शुरू होता है. 2 0 plus 1 would be 1, so 1 gets printed. 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं. थर्ड वन. अब जो नीचे हो रहा है वो जरा समझो. इस कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से अगर समझना है तो आई विल पुट इट दिस वे. f0 f1 and f of n. Sir, f of n is f0 plus f1. तो लॉजिक समझो. मैंने f1 को f0 में शिफ्ट किया. तो इनिशियली which was 0 1 and 1, I shifted this one over here. Stage 2. Sir, f0 plus f1, congrats, this got shifted over here. And for the next iteration, जहाँ पे आप 1 plus 1 2 प्रिंट करोगे, नीचे वाला इटरेशन क्या होगा? 2 तो प्रिंट कर देगा, 1 यहाँ लेगा, इस 2 को यहाँ पे ले लेगा. Again the iteration. अभी तक elements wise we have printed 0 1 1 2 4 as a term. Mind you तुम्हारा n 5 था, so let's play that way. तो अब जब आप जाओगे तभी तुम्हारा प्रिंट होगा 1 plus 2 3 gets printed. So this is 5 terms done. At the bottom what you will get is shifting 2, shifting 3, and then when you go up this becomes 5. We are supposed to stop at 5. इसमें अपना काम तो हो गया. Our job got over. That we worked out without any problem. That worked out without any issue. So that's done. अब फर्क क्या करना है? तुम लोग को बस n terms लेने हैं. अब n term generate करना. This is a program. Question जो तुम लोग को दिया गया है, which is interview round, where we said you have to take a number and then justify whether it is a part of Fibonacci series or not. So if I intend to work with that, फर्क कुछ नहीं होगा. यहाँ पे instead of n, you will take a key. जो initially if you intend to work with would be int, some input element. Let's see. सर जाना कहाँ तक? जो भी आपने की दिया, की plus 1. Sir, why are we doing that way? की तक तो जाओ, तुम्हारा जैसे ही नंबर बड़ा होगा. Now this is where people may get stuck. Sir, कहाँ तक जाना वो समझ नहीं रहा, because ठीक है ये तो सिंपल है, जनरेट करेंगे, कहीं भी मैच हुआ तो रुक जाएंगे. So now the question changes is where I'm supposed to stop. That is the one question which we have to operate. So under that scenario, the best option you can go is, instead of this, I would like to do this. Sir, I0 अगर स्टार्ट ऊपर आ गया यानी समझ जाओ मैं नीचे क्या करूं. सर ठीक है, I0 है. So what's the idea? I print करूं, else रखो, I don't mind. But after every iteration,
I प्लस इक्वल टू 1। मतलब जो फॉर लूप था उसे 3 पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया। नाउ द मेजर जॉब। सर वो एडिशन करके ढूंढना है ना। तो इफ यू इंटेंड टू मेक दोस चेंजेस, लेट्स सी। यहाँ पे पूरे चेंजेस के साथ ला रहा हूँ अब। सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू चेक इज इफ। सर बहुत फास्ट हो रहा है सर। सॉरी, बहुत फास्ट हो रहा है, समझ में कम आ रहा है इसका। मतलब लिखना ही चालू नहीं किया, फास्ट क्या लिखा? सर आपने तो रफ भी कर दिया। ओके ठीक है, मैं बाद में कोड देता हूँ, डोंट वरी। सो नाउ लेट्स गो स्लो। भाई उसने भी बोला स्लो करते हैं। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज जो की मिला है वहां से शुरू करता हूँ। इज इट इक्वल टू 1 और की इक्वल टू 0? सो दिस इज जस्ट चेकिंग 0 एंड 1, यानी 0 1 में से भी अगर मैं कोई नंबर दूं दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो in that case I will say print yes, it is a part of Fibonacci series। ये तो पहला है, 0 1 में से कुछ भी दिया तो। इसके अलावा दिया तो that is where else comes into picture। else, अब else में क्या करना है जरा देखो। else के पिक्चर में आएगा ये तो क्या। तो सर अगर मैं I0 डालू ही ना, I0 डालू ही ना और बस F0 F1 पे खेलू, चलेगा? चलेगा। I'll run this program and show you, don't worry buddy। बट फिर भी ना समझे तो पूछ। तो कॉन्सेप्ट अब क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखो। मैं एक थर्ड एलिमेंट ले सकता हूँ Fn which is F0 plus F1। then I will check if key equal to Fn। if so again you will print, sorry का सी का हैंगओवर अभी तक निकला नहीं। so key is equal to f of n works one simple way, you will say print yes, and once job done at both the point I would use break coming in picture। here also I'll be breaking things up, वरना चलने दो, वो चलते रहेगा। सर ये नहीं रहा तो आगे जाओगे। my logic would be f0 comma f1 is equal to f1 comma f of n। ये बाहर के साइड होगा बस। तो एंड में सर यस और नो आ जाएगा। अगर ये पूरे इसमें नहीं हुआ तो नाउ दिस इज वेयर आई स्टॉप। पहले मैं सिर्फ इतना कोड समझा रहा हूँ, इसमें एक मेजर चीज अभी भी बाकी है जो तुम लोग मुझे फिट करके बोलोगे। सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ अस कैन एक्चुअली वर्क इट आउट। तो लॉजिक क्या है दोस्त, देख ले। अब सपोज मैंने की डाला है एज अ यूजर, आई हैव सेड अमर चेक 8 इज इट अ पार्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज और नॉट। तो पहला तो ये टर्म है भाई, 0 है 1 है नहीं, तो ये तो हट गया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां से स्टोरी शुरू होगा। so this is f0 f1 fn की। let's play this way 0 1 1, यानी 0 plus 1 1 हुआ। मैं चेक कर रहा हूँ अमर 8 is not equal to f of n, छोड़ दे। नेक्स्ट इसमें ये 1 होगा तो ये होगा 2 not equal to 8। नेक्स्ट इसमें ये 1 होगा ये 2 होगा तो ये बनेगा 3 not equal to 8। नेक्स्ट इसमें ये 2 होगा ये 3 होगा तो ये बनेगा 5 not equal to 8। नेक्स्ट इसमें ये 3 होगा ये 5 होगा, बनेगा 8 equal to 8। Congrats, you would say yes and stop। ये समझा दोस्त? Everybody clear? Give me thumbs up। अब यहाँ पे मैं वापस पॉज लेता हूँ। सर क्यों? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हुआ तो what would have happened अगर मैं जोश में आगे निकल लेता, यानी कि instead of 8 I would have given 9, तो इसके बाद का टर्म तो सीधा 8 plus 5 आता which is 13 which is not a key। बट मैं रुकूंगा कहाँ, क्योंकि यहाँ रुकने का यस में आंसर है, नो में आंसर है। what changes you would do? सर इफ की इज ग्रेटर देन मतलब पैलिंड्रोम नंबर का सीरीज अगर बढ़ गया की से तो वी कैन ब्रेक दैट लूप।
Perfect. Actually, I am doing same thing in my logic. Perfect. तो if एक ऑप्शन है if elif else, दूसरा ऑप्शन तुम लोग खेल सकते हो if else यहाँ पे तो रहने दो, बट और एक नीचे if अलग से डाल दो, if your key becomes lesser than f of n, again you will then in that case say print not found, or you can say not followed by break. This is the way you need to work with all three options, all three working. Just a minute. This should be better. At least beach mein na okay. Okay. So this is the third condition. Yeah, pehle bhi rakh sakte, I don't mind, and then put the remaining thing in the picture. I want you guys to use these three conditions which I have given in the form of if else. I want to see how would you place these three things. Start. अगर किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए. मैं दोस्त अब समझा? Yes, sir. Okay, so don't worry. जहाँ पे मुझे समझने में by default slow हो जाता हूँ. That was not the magic question. This is the magic. So be careful. Be quick, people.
Hello, sir. हेलो सर। Go ahead. सर अगर जैसे की वैल्यू अपन ने बड़ी ली है काफी, जैसे मान लो 1000 नंबर अपने को सर्च कराना है, तो ये इसकी जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी? लूप इतनी बार रन करेगा तो ये सही रहेगा? But the problem is we don't know na user क्या देगा. So the best option which we have right now is to go through with this till a number goes. The good part about Python is if it is 265535 ये करीबन 4 बाइट तक ही यूज करेगा. When it goes beyond that फिर वो जंप मारेगा 8 बाइट. अगर it goes beyond that वो जंप मारेगा 16 पे. So it keeps on growing as per the need. ओके, थैंक यू सर सर। एक्चुअली इफ मतलब बहुत बड़ा भी नंबर दिया तो भी पैलिंड्रोम की सीरीज बहुत जल्दी बढ़ती है ना, सो Yeah. इतने loop Fibonacci में is तो gonna grow like anything because addition of last two वो लगता है उससे ज्यादा फास्ट बढ़ने वाला है. Okay, people are smart if else if key is greater. Okay, nice to see people are making smart moves. हेलो सर, Yeah, go ahead. एक डाउट है सर। अगर वो बोला. की का जो अगर वो की का जो वैल्यू है सर, वो अगर मतलब फिबोनाची सीरीज के अंदर उसका अगर हमको नंबर नहीं मिला तो वो फाउंड नहीं होगा। लेकिन सपोज अगर यूजर ने इनपुट दिया कि जो वैल्यू है वो फिबोनाची सीरीज के बाहर की होगी, तब भी सर मतलब आंसर वही आना चाहिए सर, नॉट फाउंड। हाँ तो अपना see the question itself over here is whether the number is part of Fibonacci or not. तो अगर वो बड़ा भी रहा या बाहर का भी रहा तो ऑब्वियसली आंसर वही आएगा that it is not part of it. हाँ सर, लेकिन हमने वो मेंशन किया नहीं ना कंडीशन प्रोग्राम में। FN जब क्रॉस कर देगा और तो भी मिला नहीं तभी हम लोग ने टारगेट कर दिया ना बड़ी. समझा? ओके ओके। So we have mentioned that कि अगर तेरा FN बाहर निकल लिया then you are at a stage to say कि नहीं यार नहीं, it's not gonna work, it's not gonna operate. Okay, so now working with our logic of if else if and format, let us work with this. Chalo, let me start with day 3 collab. Just a minute. Okay. Okay, so taking you guys with me to collab. Give me a minute. Okay, this should give you the link. Okay, next link मैं share कर रहा हूँ, but before that let us just go with the basics. तो हम लोग को जो करना है वो फंडा तो अभी तक क्लियर है. सिर्फ if else में हम लोग को लेके आना है. Let's call this day 3. बाद में शेयर करता हूँ, अभी टाइम पास के लिए रन करके छोड़ देता हूँ so that connect हो जाए. So we talk about n जो हम लोग यूजर से इनपुट में लेने वाले हैं. So enter number 2. First job done. So we will be taking f0, f1, fn. If you want, you can always take. I don't mind. So it is 0, 1, 1. Keep it. 1 का मुझे ज़्यादा use नहीं है, but let me put this as n itself. Sorry. So this is what we get. Sir, fn बाद में करे तो I don't mind. We can work with it. So अब शुरू करते हैं while loop के साथ. While is equal, it is true. We are gonna start. So पहला चीज if I want if जो भी तुम्हारा n है is less than the fn, पहले मैं उसे टारगेट करो where to stop.
I'll say print n comma not part of series. And then why are you waiting? Break. L if n less than key, मैं नीचे आ जाऊंगा, I would be simply key नहीं है, we have taken sorry fn as such. If it is less than fn, you'll be going down and checking again and again. So if I want, I can even put this here, less than equal to, and play with it. So नीचे आके if n equal to fn, पर का ही story with a slight change. Say n is part of it, and then you will be causing break in the picture. अच्छा, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, if I see this, मेरा fn बढ़ गया तो यहाँ उल्टा आएगा. Two conditions to target. क्या सिर्फ इतने के साथ मैं चल सकता हूँ? Let's see. So I'm playing with it. 8 जो मुझे मालूम है फिबोनाची सीरीज का हिस्सा है. If you realize by now, ये एंटर इनफाइनाइट लूप में कर रहा है. रीजन सिंपल है, सर आप इंक्रीमेंट कहाँ कर रहे हो? fn is equal to f0 plus f1. Similarly, if we'll be working with हर बार f0 f1 is equal to f1 fn. So swapping का काम कर रहा हूँ. I can directly use it using 3 variables also to play into picture. Let's see what error I'm getting. Keyboard interrupt. Yeah, that's okay. Let's run it off. Again, just to see कि क्या इतने ही elements के साथ तुम्हारा काम चल जाएगा. It is a part of a series. अब जैसे इसने कहा, सर बाहर का कुछ दो ना. 37 I'm very sure is not part of Fibonacci series. So it is not. So if I give some number, would this work with negative number? Yes, no. Reason तुम लोग चेक कर रहे थे ग्रेटर पे. अगर n छोटा निकला f of n से, इसीलिए मैंने f of n को भी 1 रख के छोड़ा, so that I can play with that. If you want to go one step beyond this and be more smart, तो एक काम कर सकते हो, मैं 0 से ही चलूंगा. तो सर क्या फर्क पड़ेगा? तो 0 भी चेक होगा, 0 plus 1 भी चेक होगा, and then we go beyond that. That is also a better thing. तो okay सर 0 चेक करके दिखाओ, part of a series. सर 1 चेक करके दिखाओ, part of a series. Sir 1 plus 2 3, part of a series. Giving a number which is not part of a series. Now let's say I have no idea about this, but confirm that's not part of the series. If we want to check, now this is up to us. If you want to check कि किस किस का printing हो रहा है हम लोग का, so I can say print checking done for. सर ये किस लिए? This is just a run. This is just a run to check क्या क्या हम लोग चेक कर रहे हैं, कहाँ से चेक कर रहे हैं. 0 तो हो ही जाएगा, पर मैं यहाँ 1 से डिस्प्ले करूंगा. If we want, we can always work for. This is just optional to prove our point, just to show कि भाई हम लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर के लिए. Suppose मैं कह रहा हूँ 18. Checking done for 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and then I'm ready to commit. It is not. This is important. Sir, तो else का काम क्या था? Else अब मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने 2 में ही काम कर दिया. नॉर्मल इफ else if का लॉजिक क्या होता? तुम लोग 0 और 1 से चेक करते, फिर तुम लोग fn से चेक करते, और else अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो हम लोग थर्ड पे आ जाते. That is one way, but this is much better in terms of 2.
Sir, can't we do it using for loop? The trick would be to think for loop, where to stop, where to end. Moral of the story, where you're not so sure when you're supposed to stop, तो हम लोग बेटर करें कि इस चीज को हम लोग ऑपरेशन में डाल सकते हैं एक बार. सर अलिफ के बिना भी हो सकता है ना? यस, वेरी मच पॉसिबल. You can do that. But then in that case, I'm just trying to work in a safeguard manner. But there is no need कि अलिफ होना जरूरी है because दोनों कंडीशन एक दूसरे से उल्टे है. तो अगर अलिफ के जगह पे मैं एल्स भी डालूं and remove this part of it and play. Let's play. If I talk about, let's say 8. So I'm checking for 0, 1, 5, 5, 8 is a part of series. Done. अगर यही चीज मैं सीरीज के बाहर के लिए डालूं, so I have worked with 1, 2, 3, 4, 8, 89 and then 90 is not a part of the series. So yes, very much possible to play with also. Nice observation. Everybody clear with this? Hello, sir. Yeah, go ahead. So actually, I was doing this code yesterday. I was using for loop, and while using the last condition, if condition, I changed the indentation and took the else outside that if condition, and it went in for loop. After for loop, the एक काम करना, सुन 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 सुन, स्क्रीन दिखा दे, इतना समझेगा नहीं रे, कोड ओरली कभी नहीं समझा वो, आप बीती कहानी है, बायोग्राफी नहीं समझता. ओके, अब बोल, अब बोलना चालू कर तो आई कैन अंडरस्टैंड. ये है क्वेश्चन. Okay, so you're taking E number to be check 0, 1, print A, B, makes sense. Then 2 से E तक जा रहा है, तक जाएगा, but number ठीक है. C is equal to your working with A, B, if E is equal to C. पहला चेंज तो आएगा, तुझे E+1 डेफिनेटली करना पड़ेगा बिकॉज E वरना चेक होगा ही नहीं लाइफ में कभी. कंसिडरिंग यू गिव 8, तो 8 तो चेक होने से ही रहा बिकॉज 8 पे तेरा लूप ही रुक जाएगा, तो 8+1 करना पड़ेगा तुझे. तो E+1 कर पहला चेंज फॉर लूप में. ओके, तो 1 हुआ. सेकंड थिंग, लेट मी चेक तूने क्या किया. E is equal to C is present in फिबोनाची सीरीज एंड ब्रेक. ब्रेक का जरूर नहीं है, हम लोग वैसे ही ब्रेक कर देंगे. इसमें नॉट अ पार्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज विल क्रिएट अ थिंग. सेकंड थिंग इज इंडेंटेशन की बैंड बजी पड़ी है, तेरा एल्स अंदर ले. सेकंड प्रॉब्लम इसमें क्या होगा मालूम, जैसे ही आप चालू करोगे मेरे दोस्त, प्रिंट वाला अगर भी पहला थोड़ा ही इक्वल नहीं है तो सीधा एल्स में आके वो ना बोल देगा. समझा? सो इफ एल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है. मेरे केस में इफ एल्स इफ यू सी मैंने रेंज के लिए यूज किया, मैंने नंबर्स के लिए यूज ही नहीं किया. क्योंकि इसमें क्या होगा, सपोज यू हैव गिवन 8 व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज, तो भी अंदर जाएगा 2 से. सपोज इट वुड स्टार्ट टू वर्क विद, वो चेक करेगा इज 2 इज इक्वल टू 8, नो, वो नीचे आएगा नॉट प्रेजेंट इन फिबोनाची सीरीज, एंड ऑफ द स्टोरी. वापस जाएगा ऊपर, वापस चेक करेगा, तो तब तक प्रिंट 8. ये रन करके देख, 8 दे. समझा? नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, एंड में आया प्रेजेंट. ये ड्रॉबैक रहेगा इसका. क्लियर? तो उस लॉजिक को आपको सिर्फ मॉडिफाई करना है थोड़ा. सर एक्चुअली जो ड्रॉबैक आया है वो चेंज करने के लिए ही ये एल्स ऐसा बाहर लिया था. लूप का एल्स यूज कर रहा है. रन कर देख क्या हो रहा है. हाँ. 0, 1, 8 is present Fibonacci series. Run कर and put 9 into it now.
समझा? तो बस उतना सा फर्क था, तेरा E+1 का मार्क आ गया था। क्लियर दोस्त? फॉर लूप में भी एल्स ले सकते हैं हम। फॉर लूप में यू कैन यूज दैट, आई नोबडी सेज नो, बट ये बेटर है ना, अपना कॉम्प्लेक्सिटी कम है कंपेयर टू द नॉर्मल वो, जहाँ पे हम लोग डबल इसमें जा रहे हैं, ये डायरेक्टली हम लोग प्ले कर रहे हैं, पॉसिबल। ओके, चलो गुड अटेम्प्ट। चलो करंटली गोइंग बैक विद द स्टोरी, और एक क्वेश्चन डाला था, याद है किसी को कुछ? पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम रिवर्सिंग आया क्या रे सबको? यस सर। नंबर Yes, रिवर्स sir. करना आया? क्योंकि Yes. अगर रिवर्स करना Yes, आया sir. है तो ये बच्चों का काम, खाली वही कोड को हम लोग डाल के वर्क कर देंगे, काम हो जाएगा। तो चलो वही बात करते, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स भाई आज का चालू करना है। सो नाउ टू वेरी क्विकली वर्क विद दैट, पुटिंग अ न्यू कोड ब्लॉक, डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। फॉर नंबर इन रेंज ब्रैकेट, माइंड यू 100 से चालू करूंगा, 1000 तक जाएगा सर, 999 पे रुक जाएगा, दैट्स द आइडिया। टी नंबर इज इक्वल टू नंबर, क्यों भाई नंबर टूटने वाला है तो बेटर ऑप्शन है तोड़ के ही लो। आर नंबर, हर बार मैं शून्य से शुरू करूंगा बिकॉज मुझे रीसेट करके वर्क करना पड़ेगा। नाउ नंबर डिवीजन के साथ हम लोग वैल्यू यूज करते हैं, जब तक टी नंबर का बैंड ना बच जाए, यानी कि 0 से ग्रेटर हो, तब तक हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे, डी इज इक्वल टू टी नंबर मोर 10 फॉलोड बाय टी नंबर equal to 10. So this is what we did. So our number into equal to 10 plus D. That is what we are talking about. If this doesn't make any clearance, so you can always work this way. Our number into 10 plus D. ठीक है, ये नंबर रिवर्स करते जाएगा। अब अगर if तुम्हारा R नंबर इक्वल टू नंबर निकला तो जस्ट प्रिंट दैट नंबर, एल्स बिल्स मत प्रिंट करो, ये तो सिर्फ लिस्ट डाउन कर देगा तुम्हारे। अब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलेगा तुम लोग को। ऑल आर पैलिंड्रोम टू वर्क विद, इफ यू कैन सी द सीरीज, ऑल आर पैलिंड्रोम टू वर्क विद। एक लंबा चौड़ा सीरीज मिलेगा तुम लोग को ऑपरेट करने के लिए, लंबा चौड़ा सीरीज मिलेगा तुम लोग को वर्क करने के लिए। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं बोलूं नहीं यार अमर ये प्रिंट करना, कितने मिले टोटल, so well you can definitely work, we are smart enough to understand इसमें क्या करना पड़ेगा। we'll be using counters in this case, initially 0, जहां जहां तुमने प्रिंट किया ना इज्जत से 1 डाल दो, क्यों एंड में बड़ा बड़ा दो, total of you will be printing one simple way, total of, now you will be printing total number of elements to be given, so we'll say count, and you would say R palindrome to work with. So if we just play this towards the ending, तुम लोग को रामायण महाभारत मिल जाएगा। 90 palindromes exist. देख लो, give you 2 minutes with this, देख लीजिए people, sorry, just go through with this.
Let me see. Okay. D3 collab link giving. Just wait. Collab link share कर रहा हूँ. People keep it with you guys, please. Here. लिंक शेयर कर चुका हूँ. People do take it down. तो हम लोग ने यहाँ तक का बात किया था. हम लोग इस पे ओवरऑल we were talking about and we were handling the things well and good. अब बात करते हैं आगे का. Let's talk about next set of things. तो अभी तक जो बात हुआ था हम लोग ने बात किया था if for else etc etc etc. Now going with one more change in the loops. Your while loop has a condition, has a block, and they do have a funda called else. ये generally ज़्यादा use नहीं होता, but again, this is a part of the system which we are ready to go with. Again, if block की तरह यहाँ पे भी एक else block होता. तो generally this else block gets executed when the loop gets over. तो okay, मतलब सर इसको while else और for else के जगह पे मैं if else की तरह देखूं. हाँ, when you would be stopping with this, you'll be coming out in a normal way. अब now to order to understand this, I think Sagar has already figured it out. Sagar ने I think यही part use किया था, if I'm not wrong. So as we work with इस concept को मैं generally end में सिखाना पसंद करता हूँ because this is not a very good practice, neither use much, but again you should realize that this is part of it. So अगर मैं कहूँ I is less than equal to 5, this is what I'm saying. Let's put I some value. I is equal to 1, suppose I'm saying. So now watch it carefully. Print I. I would like to show one important thing, guys. Print else here. Print. Done. तो पहले तो मैं सिर्फ नॉर्मल रन करता हूँ, फिर एक छोटा सा चेंज मुझे दिखाना. I forgot. We forgot that it is ultimately a while loop, so I have to give you a step. मतलब सर, it's a simple logic ना. 1 2 3 4 5 चलेगा, else execute होगा जैसे ही while खत्म होगा and work. Fine, good. I accept that. एक छोटा सा change है इसमें का. If I equal to 3, break. Any specific thing which you saw? कुछ नहीं मिला या कुछ बाहर चला गया हाथ से? सर ब्रेक से वो while लूप के बाहर आ जाएगा सीधा, else के भी बाहर. Perfect. I would like to make one note then very clear. दोनों cases gets executed only when loop completes, not when stopped by break. ये लिख के रखो, ये लिख के रखो. मतलब else ठीक है, अच्छा है यार, फंडा अच्छा है, इसमें चलेगा, हम लोग चलाएगा, मस्त. But there is a flaw with this, और flaw नहीं, एक system है. ये तभी चलेगा जब इज्जत से लूप तुम लोग के क्लोज. अगर लूप पूरी तरह से क्लोज नहीं हुए तो तुम्हारा else नहीं चलेगा. So we always accept कि लूप तभी चलेगा जब आप end तक जाओगे, जब आप end तक work करोगे. So be very very careful when you use. ठीक है? Can be clear. ये समझा सबको? लॉजिक समझा? क्लियर विद दिस? तो बहुत बार ना जब मैं सिखाता हूँ बाद में यूजर आता है सर, फिर फायदा नहीं है. दिस इज वन ऑफ द फीचर विच दे गिव. जैसे नो अननोइंगली सागर ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल यूज किया था जहां लूप चला, नॉर्मल बंद हुआ, यानी कि मुझे आइटम मिला नहीं, तो मैं एंड में बोल सकता हूँ नॉट फाउंड. बीच में बंद होता तो मुझे बोलने का जरूरी नहीं है. So that is the reason where we use this. That is the reason why or how we put this. This is how we will be working. This is how we will be
operating. Do make a note of this. This is pretty important. Only in the case where somebody tells you without using if या without using some condition तुम end में check कर सकते हो. तो हम लोग को check एक ही चीज करना होता है, that if element not found तो मुझे क्या देना है, या loop अगर बीच में बंद हो गया तो मुझे end में कुछ print ही नहीं करना. तो बहुत सारे searching algorithms में हम लोग ये condition आजकल use कर रहे हैं, जहां अगर element found हुआ और मैं बीच में रोक दिया, then I would work and say कि yes, not found. But अगर कुछ हुआ, so this is basically part of it. Everybody clear? Any query? Any question? Everybody clear with this? फंडा समझा सबको? Sir, why there is no indentation or else? ए भाई, ये while का instance है ना? Mhm. So while का block and if else में indentation था क्या? If और else एक ही line में आते थे ना? Okay, okay. I thought समझा? okay, okay. Perfectly okay. I have no issues. So I hope people are clear with this. चलो, let's go further. भाई हम लोग ने लूप कर लिया, लूप का ऑपरेशन कर दिया. लूप का और एक चीज नो आज मुझे कुछ दिखाना है, because we would be using this quite a lot. सर क्या? Now people fail in understanding कि लूप प्रैक्टिस के लिए हम लोग आज भी पैटर्न प्रॉब्लम्स यूज करते हैं इंडस्ट्री फ्रंट पे. सर मतलब तुम्हारा टेस्टिंग के लिए जब हम लोग वर्क करते हैं तो वी ऑलवेज यूज पैटर्न प्रॉब्लम्स जस्ट टू सी हाउ गुड यू आर विद दैट. पैटर्न प्रॉब्लम्स में यहाँ पे एक बड़ा फर्क आएगा. जब स्टार वाले पैटर्न प्रॉब्लम्स है वो मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, दैट आई विल बी टीचिंग विद स्ट्रिंग. तो सर यहाँ पे कौन सा है? नंबर बेस्ड. अरे भाई 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. वी ऑल नो ये एक ही क्वेश्चन है. 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5. ये बेसिक है. दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स, देन इट चेंजेस. एंड बिलीव मी, मैं अगर एक पूरा 3 घंटा भी डेडिकेट कर दूं ना पैटर्न प्रिंटिंग के लिए, तो भी 3 घंटा 1 मिनट में मैं एक नया पैटर्न ला सकता हूँ. So you just need to understand how the system is going to flow, how the system is going to work. People, watch it. The concept is called nested loop. So for I in range, अब जरा ध्यान से, most of the time, I would say 70 to 80% टाइम ऊपर के लूप में फर्क नहीं आता, सेकंड लूप में फर्क आता है. But before I could start with this, let me check out this. People, please pay attention to this part. Sir, 1 2 आएगा ना, 4 ले लो. चलो 1 2 3 के लिए फिर मैं और एक फॉर लूप डालता हूँ. आई एम नॉट शोइंग दिस पैटर्न. तो सर क्या कर रहे हो? पहले सिर्फ टाइम पास करते, थोड़ा घूम के आते ना, फिर जाते वहां और उसके नीचे में प्रिंट है. Help me off to understand what would be printing doing in this. इसका आउटपुट क्या होगा? Anybody? I1 J1 I1 J2 I3 ऐसे चलेगा एक एक. Perfect. So people who are not aware of it, let me make it very very clear. For each pass of external loop, internal loop runs 10 times. जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता और मैथ समझ में आता है, for one pass of external loop, this is going to run 3 times. So for second, it is going to run 3 times. For third, it is going to run 3 times. So if I say 3 into 3, total 9 runs is what is expected. भाई ये मैथ्स था, ये इंग्लिश था, ये प्रोग्रामिंग है. तुमको जो समझे वो समझो, बट समझना जरूरी है दोस्त. फिर भी मेरी इच्छा के लिए जरा ध्यान से, when I say I is equal to 1, my j would be 1, 2 and 3. So rightly said 1, 1, 1, 2, 1, 3. उसके बाद वापस ऊपर रहूंगा. j वापस मेरे दोस्त 1, 2 और 3 होगा. So sir 2, 1, 2, 2, 2, 3. Very good. I is equal to 3, j is equal to 1, 2, 3 again. That means we have 3, 1, 3, 2, 3, 3. This is how the system is going to work. This is how
system is gonna work. I hope people know this. Varna, take it down. I'm going slow because इसके बाद चीजें थोड़ी और मजेदार हो. Things would be more interesting. ले लो जिन्हें नहीं मालूम. As good 3 people writing, do take it down. Then people, should we move ahead? Thumbs up if clear till this point. People. Okay, I could see if you are still writing. Go ahead. Go ahead. Okay, I think people are done writing. चलो, step 2. अब यहाँ तक तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है. मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट का बात किया. हो रहा है इसे हो रहा है. गुड. सो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग स्टाइल में लिखते हैं. अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं यार अमर, व्हाट इफ वी वांट समथिंग लाइक दिस. अब इसमें एक्सटर्नल लूप इज जस्ट गोना गिव यू नंबर ऑफ लाइंस. तो आई का काम ये होगा, जबकि कॉलम्स का काम तुम्हारा जे करे. तो जे इज गोना गिव यू नंबर ऑफ कॉलम्स, आई इज गोना गिव नंबर ऑफ रोज. लिख के रखो. आई गिव्स यू नंबर ऑफ रोज, J gives you number of columns to work into picture. Everybody clear with this part? I gives you number of rows, J gives you number of columns. So if that is so, let us try to operate, because things are going to be a bit tricky when it comes. I have seen people writing a right code and still getting disqualified in exam. Sir, क्यों? क्योंकि आउटपुट उन लोग को लगता है वो आएगा, बट आता नहीं. अच्छा सर, 5 लाइन है, 6 तक जाना पड़ेगा. पहला चेंज. सर क्यों? 6 पे रुकेगा. 5 दिया तो 4 पे रुक जाओगे. पहला पॉइंट. 1 to 6 because you will go 1 to 5. सर 1 2 3 4 5 5 लाइन. I am supposed to go till I plus 1. So J is going to make a move till I plus 1 because of one thing. वो 1 है तो ये 1 से चालू होगा, 1 से 2 यानी 1 पे आएगा. वो 2 है तो 2 plus 1 3 यानी 1 and 2 आएगा. अब इसके बाद तुम लोग प्यार से ना इतना लिख के आता, प्रिंट J खत्म, and you feel the code is done. इसमें ना वो लंबा सा ऐसा सीरीज आएगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3. भाई बैंड बज गई. तो सर आपको करंट लाइन में ही रहना है. Anybody could remember करंट लाइन के लिए क्या था मेरे पास? कुछ End. End is equal to, if you want you can give एक स्पेस दे रहा हूँ. सर क्यों? काय को चिपका रहे हो? सोशल डिस्टेंसिंग रखो. So now logic is simple, वो एक स्पेस देगा. But in that case now I have to come down after this loop gets over. So ठीक है, इसके पैरेलल आओ. प्रिंट. प्रिंट में कुछ तो लिखो. प्रिंट ये सिर्फ नीचे लाने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा. So if this thing works, how this is supposed to operate? People, pay extra attention now. I'm getting in, guys. Pay attention. So I पहले 1 होगा दोस्त. तब J 1 से 2 के रेंज में जाएगा, यानी 1 तो प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, एक ब्लैंक स्पेस देगा, रुक जाएगा. उसके बाद सर वो 2 होगा, बट अलाउड नहीं है ना, 2 पे तो रुक जाएगा. वेरी गुड. तो 2 पे रुकेगा. रुकने के बाद नीचे आएगा. नीचे आने का मतलब सर कुछ प्रिंट नहीं करो, तो मैं सिंपली लाइन शिफ्ट करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा. आई अब 2 हो जाएगा, जे वापस 1 होगा, बट जरा संभल के मेरे दोस्त. अब तुम प्रिंट करोगे जे का वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे एक ब्लैंक स्पेस के साथ. फिर ये होगा 2, तो तुम 2 प्रिंट करोगे एक ब्लैंक स्पेस के साथ, और वो 3 पे रुकेगा, वापस नीचे आएगा. वापस तुम्हारा सॉल्यूशन एक लाइन नीचे आके रुकेगा.
I3 है, J1 है, बट नेक्स्ट लाइन पे 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, 4 रुकेगा। ये नीचे इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज यस 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट। सो चलो बात करते हैं। let's go with the collab link, that's the best option to work with। मैं वापस ये स्क्रीन पे लेके आऊंगा, डोंट वरी। फर्स्ट पहले समझ लो कि कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या, फिर मैं वापस स्क्रीन पे लाऊंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। सो इफ यू वर्क विद दिस, लेट्स गो। क्या क्यों कैसे, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 1,6। सर ये कौन डिसाइड करेगा, तुम्हारा पैटर्न, ना मैं ना कोई और। फॉर j इन रेंज 1, i+1, i+1, ओके नीचे जाते हैं। सो विल वर्क विद प्रिंट, j प्रिंट करना है ना सर। मैं पहले तुम्हारा पहला वाला मिस्टेक दिखाता हूँ, मस्त 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1, मतलब सर आउटपुट तो बराबर आ रहा है, बराबर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, बट बाकी का फंडा चल रहा है ना। डालो एंड डालो, एक स्पेस डाल दिया, अच्छा अब मगज मारी यार, ये नीचे जा ही नहीं रहा सर, बराबर है तो तुमको करना पड़ेगा ये। मुझे इंडेंटेशन में प्रिंट यहाँ चाहिए। सर प्रिंट कुछ नहीं कर रहे हो, रहने दो ना, अच्छा लगता है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, this is what you print, this is what you print, stage 1। वापस जिन्हें ये वाला कॉपी करना है, टेक इट डाउन, बी क्विक पीपल। दे दे आपको okay, done with this people, give me thumbs up if done। मैं इतना क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल थिंग, क्या कर रहे हो भाई, चो राहुल दुबल। Hey, have anybody told you look like that technical गुरुजी करके एक चैनल है YouTube पे, I tend to follow you, look lot like him। मैं एक सेकंड में बोला आइला आप, but then I realized नहीं यार ये स्टूडेंट है, but you do look like him। I mean just grid में जा रहा हूँ, so I'm going through। Okay, चलो I feel people done, thumbs up, people done। Okay, super। चलो अब आगे का बात करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर सिर्फ मुझे बोलो क्या होगा अगर मैं आई जे के जगह पे आई डाल दूं, सेकंड पैटर्न सुपर। हाउ वुड आई जनरेट दिस, अब दिमाग तुम लोग का, काम मेरा।
How do I generate this? If People, bolo. How do I generate this? Every even number zero value. नहीं, ये मेरा प्रोग्राम दे दिया, इसमें क्या चेंज करके ये आएगा, बस मेरा क्वेश्चन वो है। यहाँ पे कुछ चेंज करोगे, कुछ करोगे। What if I tell you this is the exact program what is on screen? सिर्फ दिमाग लगाओ थोड़ा। Come on guys, कोई तो बोलो। सर इंक्रीमेंट करके फिर डिक्रीमेंट करके वो प्रिंट करना। ना, Decrement. ओके। J इससे J पहले mod तुमने to ये J प्रोग्राम minus किया, J बराबर, mod जे to वाला। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है क्या? Even numbers पे 1 about. That's it. And problem with engineers ना, हम लोग सब में माँ कसम XYZ ढूंढते, ABC ट्राई करो ना कभी कभी। अब उतना ये एक बार मैं बोल के पछता चुका हूँ। I had a batch और फिजिकल बैच था, अभी रिसेंट चल रहा था एक बार, तो मैंने बोला अरे चीजों को सिंपल करो। इमीडिएट उसके बाद एक मैं बहुत उस पर चिल्लाता था, समीर करके, उस भाई साहब को ये प्रोग्राम मैंने दिया, बोला सिंपल सोच। It took 2 minutes, ऐसा हो गया और आउटपुट दिखा है। I was impressed। बोला क्या बात है, भाई साहब ने इज्जत से 6 लाइन का प्रिंट डाल के रखा था। बोले ये क्या किया? आप ही तो बोला सिंपल सोचो। बोले चप्पल खाएगा, ऐसा सिंपल मत सोच के इंटरव्यू से बाहर निकले। So don't try to do that by simple. Yes, there are solutions. तो Jmod 2 करो अपने existing प्रोग्राम में, तुम्हारा काम हो जाएगा। Be very very careful. 1.0 के most of the programs would require you to understand the pattern. कि इसमें अगर मैं Jmod 2 डालूं, ध्यान से देखो, पैटर्न immediately change हो जाता है। So you need to be very smart in picking up this. You need to be very smart in picking up this कि ये sequence क्या है. If you can get it, well and good. ये तो ठीक है, हम लोग एडवांस में दिखा रहे हैं, तो you guys are prepared mentally, but yes, this is what you have to work with. Okay, so this is what we did. Apart from that, ये तो हम लोग को आता है, अब तुम लोग पे काम दे रहे हो भाई, you guys would be doing. So how would we work? I want you guys to work on this. जल्दी से start. 2 minutes. I'm not giving you anything beyond 2 minutes. पूरा कोड तुम्हारे पास है, सब कुछ है यार, तो 2 मिनट बहुत हो गया तुम लोग के लिए। 2 minutes. Write and send it across. सिर्फ दिमाग लगाओ, तुम लोग को कहां से कहां तक चलना है। इस बार डिक्रीमेंटल सीरीज है 5 4 3 2 1 एंड देन यू विल बी प्लेइंग विद इट। तो ऊपर के लूप में चेंज होगा या नीचे के, सोच समझ के मेरे दोस्त। क्या बात है, स्पीड मान गए, इम्प्रेस। गुड शुभम, गुड। ए अपने पास कितने शुभम है? आई मीन हाउ मेनी शुभम ज्यादा है बाय द वे? 1 2 कितने? Sir, only 2. Only 2. We had a record last time in Vita batch. We had 12 Shubham. This time we have 8 Shubhams. कल ही उन लोग का लेक्चर चालू हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तो मेरा आदत हो चुका है अब शुभम में गिनता हूँ कितने हर बैच में। So be quick, be quick. Superb, superb, superb. क्या बात है। अनुष्का clearly getting? Okay, looking confused इसलिए पूछा। So okay, चलो। People anywhere, any point, anything you feel like asking, go ahead, shoot it off, so that I can help you off in the easiest manner. Okay, chalo. Good to see your answers are coming in. That's nice. That's really nice. Chalo. Wow. Wow. People are really getting to know this. Chalo, good. Good. Taking you back over here. So sir, यही कोड है एक्चुअली, सिर्फ हम लोग को ना सर कम करना है तो शुरू 5 से करूंगा, खत्म 0 पे करूंगा, बट यहाँ पे स्टेप देना पड़ेगा सर। बाकी देखते हैं, चलो। तो पैटर्न उल्टा तो हम लोग को दिख ही गया कि हाँ सर, उल्टा 1 zeros लेने भी हम लोग को अल्टीमेटली यही यूज करना पड़ेगा।
और इसके जगह पे अगर मैं ये डाल दूं, सॉरी लेट्स पुट जे इंस्टेड ऑफ इट, तो मेरा काम वैसे भी हो जाएगा। तो सर 1 2 3 1 2 1 2 1 job done. Okay, super. If this is so, I mean this is easy. Let's make it more easy. So अगर मेरे दोस्त, मेरा बात है, अगर मुझे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, think and work with this now, people. जियो इंटरव्यू राउंड्स में ये क्वेश्चन डाला गया। This was although for Java interview rounds, but I like the question kind of. I increased timer to 5 minutes. चलो 5 मिनट दिए। अब दिमाग लगाओ क्या करोगे, because this is not exactly how it is going to look. 5 है, फिर 5 4 है, फिर 5 4 3 है, फिर 5 4 3 2, यानी इतना तो श्योर है नीचे का लूप, अंदर का लूप हर बार सर 5 से शुरू होगा, इतना मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। सॉरी 5 से शुरू तो श्योर होगा सर। 5 4 3 2 मतलब अगर मैं 5 से ये भी शुरू रखूं, अगर मैं बात करूं तो वुड दिस वर्क, बिकॉज 5 फिर 5 4 होगा, फिर 5 4, तो 5 से लेके 0 तक -1, तो 5 4 3 2 1 ये संभाल लेगा। यानी कि अगर मैं कहूं अमर 5 से लेके आई +1 करूं या -1 करोगे? थिंक अबाउट इट ऑन दिस ग्राउंड। मेरा आंसर एग्जैक्ट नहीं है, मेरा जस्ट आंसर मैंने दिया है, लेट्स सी क्या होता है। Okay. Good to see. People who think they have got the code, got the understanding, and no, relax. You do have one question जहां पे मैं static P से T तक ला रहा हूँ, फिर उसी प्रोग्राम को डायनामिक वर्जन पे घुमा दिया गया। यूजर से 2 अल्फाबेट लो, कंसिडरिंग स्टार्ट विल बी लेस देन एंड, तुम लोग को जितना भी है एनीथिंग, इट कैन बी 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर, इट डिपेंड्स कि तुमने कितना बड़ा रेंज दिया है और उसके बीच में प्रिंटिंग डालना है। तो सोचो क्या करोगे, कैसे करोगे। मीनवाइल आई विल आंसर दिस फर्स्ट, जो ऊपर 5 4 वाला है मैं उसके पीछे पढ़ रहा हूँ। People who feel you can crack the code, go ahead with it, feel free to go. People who want नहीं सर थोड़ा समझाओ, they pay extra attention to work. So मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ for the upper one. If I go with, मैंने कहा है 5 से 0 ट्राई करूंगा, तो ये तो बराबर है सर। यहाँ भी 5 से शुरू तो करेंगे हम लोग, 5 -1 तक जाएंगे एंड फिर सर -1 डाल के देखते हैं। चलो so if I work with 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1, यानी कि ये रेंज तो बहुत सिंपली हम लोग को समझ में आ गया। नाउ योर टाइम एंड एफर्ट्स वुड गो विद द फैक्टर ऑफ वर्किंग विद दिस। उसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखना, पीपल,
वॉच दिस केयरफुली, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हम में से बहुत लोग ये सोच रहे हैं सर ए डाला तो ए आएगा, बराबर, ए इज अल्फाबेट ए। तो इफ somebody asks you a, it is an alphabet. Very good. तो what is a plus equal to 1? मतलब सर एक से बढ़ा देंगे। Congrats, एरर दिखेगा सामने। अरे सर अब गड़बड़ है। Now remember you cannot do that. प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं चलेगा। इसके लिए ही मैं रुका हूँ। So people, remember there are two things which you should know and make a note of this. हर interview rounds में ये पूछे जाते हैं। So people, please pay attention to what I'm about to discuss now. On a serious note, people, pay attention over here, how and what we are dealing with. तो अब बात कर रहे हैं एक फैक्टर, इनफैक्ट दो चीजें हैं, ORD एंड CHR। कैर नहीं है, CHR है। ORD क्या करता है? सिंपल, ये कैरेक्टर से आस्काई में कन्वर्ट। सर कार क्या करता है, CHR क्या करता है? उल्टा। बस मेरा मदद खत्म हो गई। बाकी तो तुम लोग स्मार्ट लोग हो, तो करो, try. I'm giving you 5 minutes for this and to crack the code. Just of luck. 5 minutes starts.
Also try for this, people who have done with this, try for this. This is dynamic. That means user would give some info. Last 50 seconds. उसके बाद मैं शुरू करूँ. Okay, my turn. People. Now pay attention how we are going through, how we would work with. So people, please pay attention over here. अब बात करते हैं directly coding bench पे. Let's try to understand how and what we are planning to code. So अगर मैं बात करूँ, मुझे user से लेना है start. I'll be taking input. I'll be taking some character. Enter char or character to. ठीक है, ले लो. Enter character to end. Make sense. तो start और end का बात हो गया. अब we can work with numbers and we would be working rather with numbers. So क्या करोगे? You can have this way. For I in range bracket ORD. Convert कर दो start को. Convert कर को start को. सर कहाँ तक जाओगे? ORD of end mind you +1. ओके, मतलब सर हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्टली ORD फंक्शन को यूज करने का. नंबर्स मिल गए. फॉर j in range. अब वो स्टार्ट तो ORD से ही होगा. जो भी है तुम्हारा. और फिर i+1 पे क्लोज होने वाला. ठीक है, मतलब डायरेक्टली ORD यूज करो. बट सर प्रिंटिंग CHR ऑफ j, मतलब सर फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा. एंड अ ब्लैंक स्पेस देन प्रिंट, जैसे लास्ट टाइम किया था. लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट. सो प्ले करके देखते हैं. तो बोल रहा हूँ अमर, मुझे बीच का अल्फाबेट सी ले. DEFGHI. मैं आई पे रुके. C, CD, CDE, CDEF. The trick is to understand this concept. हम में से बहुत लोगों को ये concept भूल होता है. So people fail in understanding that yes, this is very much possible. You can play with this. You can work with this. So this is how you would be operating. Everybody clear? Sir, can you please explain ORD क्या होता है और ये CHR? कौन है महान हस्ती? कौन बोला? वापस बोलो. सर मोहित. तेरी तो कहाँ था? सर समझ नहीं आया. ये पढ़. कैरेक्टर ASCA मतलब नहीं आया समझ. ओके, जोक्स अपार्ट, सीरियस नोट पे जरा समझ दोस्त. हर अल्फाबेट का एक आस्काई वैल्यू होता है. ये मानता है? आस्काई क्या है मालूम है? नहीं. प्रॉब्लम वहां से चलो. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. फॉर अस दोस्त, हम लोग इंसानों के लिए यहाँ पे लिखे गए अल्फाबेट्स मेंशन या दिमाग में जाते हैं हम लोग के. कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज ABCD बिकॉज दे अंडरस्टैंड एज अ लो लेवल लैंग्वेज. तो फंडा ये होता है, कीबोर्ड से आप जो भी प्यारे अक्षर टाइप करोगे, लेट्स से A, उसे कंप्यूटर 101 कुछ एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है. इस कन्वर्जन को मैपिंग कहा जाता है और वो मैपिंग है आस्काई. यानी जो तेरे लिए A है, कंप्यूटर के लिए इट्स अ सम सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस. इसका एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड किया गया है. दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड आस्काई, व्हिच इज कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. माय डियर, तो अभी जो मैंने सिखाया
अगर कोई भी जैसे कि तू ए प्रेस करे तो ए का कोई तो 1011 वाला कोई सीक्वेंस होगा जिसका वैल्यू मुझे मालूम है विच इज इन टर्म्स 65 एज अ डेसिमल नंबर। वो अल्टीमेटली एक सीक्वेंस ऑफ 101 कुछ होगा। उस कॉन्सेप्ट को आस्काई कहा जाता है। यानी कि कोई भी अल्फाबेट कंप्यूटर के लिए कभी मायने नहीं रखता, उसके लिए मायने रखता है एक आस्काई। आस्काई इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट अल्फाबेट इन 0 and 1 जो हम लोग यूज करेंगे। अब समझा मोहित? यस सर। ओके, सो इसलिए अच्छा हुआ पूछा। तो अब ये दो जो फंक्शन है ना दोस्त, उसमें अगर इसमें तू अल्फाबेट देगा तो तेरे को उसका आस्काई वैल्यू मिल जाएगा। उल्टा इसको आस्काई दे तो तेरे को उसका कैरेक्टर या अल्फाबेट मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। चलेगा। अब समझा कोड? वापस एक बार कोड देख ले। सो इन केस इफ यू हैव अ डाउट इन कोड फील फ्री टू आस्क। अब समझा? मैंने देख क्या किया, दिस इज टू एवरीबडी, नॉट ओनली टू हिम, दिस इज आई एम एड्रेसिंग हिम बिकॉज ही आस्क्ड वेरी प्रिसाइजली। सो मोहित देख, एक सिंपल सा आइडिया लिया हम लोग ने एक अल्फाबेट लिया समझने के लिए, एक्सेप्ट कर कि तूने ए लिया है। अब मैंने क्या किया, ए ले तो लिया, मैंने बोला खत्म कहाँ करना है अमर, बी सी डी, सपोज मैं बोलूं ई पे खत्म करना है, तो यहाँ पे मैंने बहुत स्मार्ट मूव कर दिया। मैंने बोला एक काम करना अमर, लेते वक्त ए मत ले, तू ए का ओआरडी वैल्यू ले, यानी कि इन दिस केस इट विल टेक 97। सिमिलरली इसको कमेंट कर देता हूँ वरना कोड नहीं चलता। सिमिलरली मैंने बोला यार अमर ई से एंड किया है ना, तो ई से एंड तो किया है मानता हूं, बट उसका मतलब है 97, ए बी सी डी ई 5 का डिफरेंस, सो 97, 98, 99, 101, 102, तो ये 102 होगा। तो मैंने बोला यार अमर एक काम कर, +1 कर, यानी कि 103 तक जा, बस। बाकी का पूरा इक्वेशन यहाँ पे हम लोग क्या खेल रहे हैं, हम लोग जो भी तेरा नंबर ले होगा, दैट इज अगर 97 तो उसको मैं ए प्रिंट करूंगा, अगर 98 तो उसको मैं बी प्रिंट करूंगा, एंड सो ऑन वी कैन गो अहेड विद। अब क्लियर हुआ दोस्त? यस सर। पीपल क्लियर? माइंड यू, क्योंकि ये इसीलिए डाला जाता है क्योंकि हम में से बहुत लोगों के बैंड बजी पड़ी रहती है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके ओके, अलग अलग के अलग अलग होंगे। मैंने 97 जस्ट एक एग्जांपल लिया, अगर प्रिसाइजली मुझे नंबर्स चाहिए तो यस, वेरी वेल सेड, कैपिटल ए is 65 and lower case a is 97. I accept that. मुझे सिर्फ एक वैल्यू लेना था तो मैंने वैल्यू लेके दिखा दिया। Okay, everybody clear with this? No doubt, no query. So I feel people can play along very easily with this thing now. हाँ, ये करने का अलग एक तरीका भी आएगा, but वो आगे, अभी नहीं। So these are the kind of questions which you should be prepared with when you work and operate with the concepts. Everybody crystal clear? No doubt, no nothing. दिमाग में बैठा सब? तो लूप बेस्ड, मतलब लूप बेस्ड क्वेश्चन आज भी इंटरव्यू में आता है। व्हाई डू यू थिंक मैं सिखा रहा हूँ? बहुत आते हैं और स्टूडेंट उतना ही पुअर हैंडल कर पाता है उसे, क्योंकि हम लोग को आदत ही नहीं है लूप्स का। हम लोग बेसिक चीजें करके जाते हैं और वो लूप्स में नहीं फिट होते। सो बी वेरी वेरी केयरफुल टू वर्क विद, बी वेरी वेरी केयरफुल टू वर्क विद। इसी कॉन्सेप्ट को और एक स्टेज आगे लेके जाते हैं, सिंस मुझे आज पूरी तरह से तुम लोग का लूप पे हैंड होल्डिंग रखना है, यानी कि आपका लूप आज के लेक्चर के बाद यू शुड बी हैप्पी टू से सर लूप में कुछ भी पूछो हम लोग कर लेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स गो ऑन स्टेज 2 पीपल। ये सब तो सिंपल है सर, वेरी गुड। हैव यू थॉट अबाउट वर्किंग विद राइट अलाइन पैटर्न्स? सोचा है थोड़ा? सर वो क्या होता है? ऑब्वियसली इसका वेरिएशन, मतलब व्हाट इफ आई टेल यू अमर ये कर, अब इसमें जो दिख रहा है वो है, जो नहीं दिख रहा वो ज्यादा है। सर बस क्या? अच्छा भाई ये पकड़। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आई विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दिस एज ऑफ नाउ। पहले तो यार दिमाग में इसको एक स्क्वायर बना दो, देन यू विल बी स्टार्टिंग टू बिल्ड इट। सर यानी कि ब्लैंक स्पेसेस हमको प्रिंट करना है? हाँ मेरे दोस्त। सर कितने? 4, अगर डबल पकड़ के चल रहे हो तो 8, 3, 2, 1। सो द बेसिक आइडिया इज फॉर एवरी प्रिंट
which will go ahead. You would be printing certain blank spaces. Then you will be printing value of j, and then you will be doing certain end, where in my case I am putting a blank. Okay sir, इससे क्या होगा सर? एक ब्लैंक होगा, बट सर एक थोड़ी चाहिए, अलग अलग नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस चाहिए. तो जरा मेरा मदद करो, पीपल प्लीज हेल्प मी टू काउंट. पीपल हेल्प मी टू काउंट. पहले लाइन में अगर मैं पकड़ूं तो कितने ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं? पीपल 4 नेक्स्ट 3 2 1 0. अब अपना तिगड़म लगाते हैं. मैथ्स बराबर जा रहा है क्या देख लो. सर ये क्यों किया? Because that's the way. If you see, this is nothing but your I. So if I put phi minus I, ये स्पेस का काम कर देगा. सर स्पेस लाओगे कहां से? पाइथन जाग जाएगा, देख लो. Into I will repeat blank spaces for I times. सर वापस बोलो. टेंशन लो. अगर मेरे दोस्त मैं A बोलूं, इसको into 3 कहूं, तो ये ट्रिपल A कर देगा. ये पाइथन का स्पेशलिटी है. पहले मेक अ नोट. A string multiply by a number, repeat string n times. A string multiplied by a number, repeat string n times. Repeat string n times. A string multiplied by a number, repeat string n times. Repeat string n times. String multiplied by a number, repeat string n times. अब ये पहले प्रूव कर लेते हैं गाइस, so that you know people feel comfortable कि हाँ सर बोल रहे सच्ची ऐसा कुछ हो भी है. So भाई एक सिंपल सा फंडा है. अगर मैं कहूँ Amar into 3, and if I play with Amar, okay. अगर उसमें just to prove my point, अगर मेरा string ऐसा भी रहा तो exact string 3 बार दिखे. If this is clear in our head, let us try to build what we worked with. तो हम लोग पहले ऊपर का ही प्रोग्राम ले लेते हैं. Ultimately that worked for us pretty nice. ले लो सर वो 1 2 3 वाला. हाँ जरा ध्यान दो. Now people pay attention on my screen please, then I'll give you time to work it out. So sir in short पहले इतना करके दो ना. No issues, इतना कर लो सर. ठीक है. अब आप बोल रहे हो सर करने के लिए आपको ब्लैंक स्पेस इनटू ब्रैकेट 5 माइनस आई डाल रहा कॉमा जे, मतलब 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3, तो क्या होगा पता नहीं. देखो बैंड बजी. फिर ये तो आगे पीछे का सब बिगाड़ रहा है. अच्छा तो पहली बात मैं एंड को हटा देता हूँ. एंड को मैं नॉर्मल टर्म्स पे लेके आता हूँ एंड वी वर्क विद इट. सर थोड़ा बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, बट इसके आगे का गड़बड़ हो रहा है. इसका आगे का गड़बड़ हो रहा है बिकॉज वी आर प्लेसिंग इट एट अ रॉन्ग लोकेशन. सर मतलब चेक इट आउट दिस. इस तरह के सिस्टम को वर्क करने के लिए, लाइन में एक ही बार स्पेस चाहिए ना तुमको. प्रिंटिंग बार बार चाहिए, स्पेस एक बार चाहिए. तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट डज इज ट्राई टू मैनिपुलेट थिंग्स ओवर दैट. इसके बाद एंड डालो एंड वो ब्लैंक होगा. मतलब सर एवरी लाइन स्पेस गेट्स प्रिंटेड जितने चाहिए. फिर इस लूप में डेटा गेट्स प्रिंटेड. ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. सर ये तो बात में मस्करी में ये हो गया, सेंटर पिरामिड बना दिया आपने. अच्छा पॉइंट है. व्हाट इफ आई लीव दिस एंड टू ब्लैंक एंड प्ले विद इट. मजा आया? आई रिपीट माई सेल्फ. The most interesting thing happened is अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूं तो सेंट्रॉइड या सेंटर पिरामिड बन गया. अगर वही स्पेस मैं यहाँ से निकाल दूं
बस मेरा काम हो गया, तो मेरा राइट अलाइन पैटर्न हो गया। तो अल्टीमेटली वी नेवर डिड। अब एक क्वेश्चन है सर, ये ऊपर क्यों, ये नीचे क्यों? ऑन माय स्क्रीन ध्यान दो। तुम लोग को अगर स्पेस प्रिंटिंग का बात बोलूं तो वो एक ही बार होना है, स्पेसेस एंड देन वन डेटा, बराबर है सर। सेकंड इसमें अगेन स्पेसेस प्रिंट एक ही बार करना है, बट मेरे दोस्त डेटा तो 2 बार प्रिंट करना है। तो स्पेस प्रिंटिंग तुम लोग ने अपर लूप में रखा एंड डेटा प्रिंटिंग तुमने बॉटम लूप में। होपफुली पीपल आर क्लियर विद दिस। एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। ये देखो ध्यान से। People clear, then give me yes in chat so that I can start counting कितने लोग clear है। People clear, say yes in chat. People having doubt, start asking. चलो, I have 33 people who are very clear about it. I'm waiting for others also. अगर doubt है तो पूछिए. It's a good time to do it. People who are done can target this one. ऊपर का जो है second question, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 and 1. The upper triangle, as we call it. There's a lower triangle, that's our upper triangle. Others can try. People having doubt, feel free to ask. Feel free to ask. मैं वापस पूछ रहा हूँ. सर कौन सा पैटर्न करना है दूसरा? वो आपकी स्क्रीन शेयर है उस पर। Just a minute. ये पैटर्न है ऊपर जो हम लोग ने बोला, ये वाला. ओके सर, थैंक यू। Most welcome. Start. People, go ahead. This is printed 5 minutes. One and working. Smart move.
Come on, people, start coding. Time is given to code so that you guys can actually practice. Okay, smart. कि वहाँ कैलकुलेशन तुम लोग के अलग होंगे, तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सो इट इज 5 times that 4 times that 3 times, तो तुम्हारा आई के साथ क्या होगा और आई के साथ तुम्हारे स्पेस के साथ क्या होगा, ये दो कैलकुलेशन तुम्हें दिमाग में रखने पड़ेंगे. Okay, interesting. Okay, my turn. So people, let's get into. अब कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं खेलूं, इसी कोड को थोड़ा आगे ले जाते हैं. सर इस बार आपका कोड टेक्निकली 5 4 3 2 1, यानी कि कोडिंग में आप शुरू करोगे 5 से, एंड करोगे 0 पे और -1, यानी आई उल्टा जाने वाला. सर क्या ये अभी भी वैसे ही रखना है? वेल, अप टू अस, लेट्स सी. फिर सर i+1 तक तो जाना पड़ेगा और वर्क करता है, यानी कि मैंने प्रैक्टिकली सिर्फ ये चेंज कर दिया, तो सर इतने से थोड़ी फर्क पड़ने वाला है. देखते हैं, चलो. सो इफ आई प्ले दिस थिंग एंड सी, वॉला, जॉब गेट्स डन. सो सिर्फ एक छोटा सा चेंज, अदरवाइज देयर इज नो चेंज. आई मीन पब्लिक बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक सोच रहा था शायद, बट इट्स वेरी सिंपल. सर यहाँ स्पेस दिया तो क्या होगा? द सेंटर पिरामिड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 and 1. That's how we work with. So logic बहुत सिंपल सा है, फंडा बहुत सिंपल सा है. How we work with this. लगे हाथ, जब सीरीज का बात हो रहा है तो we would also come across one more thing to play into. People come across and work with this. किसी को कोई डाउट अभी तक? All clear? People give me thumbs up if clear. People clear? Sure. Okay. अब मेरे दोस्त नेक्स्ट काम, सीरीज का ही बात चल रहा है, तो हाउ कैन वी फॉरगेट वन ऑफ द सीरीज व्हिच यू शुड बी रेडी विद इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 up to and down. यानी यूजर एक नंबर देगा, उस नंबर तक ये सीरीज प्रिंट होना चाहिए. इट कैन बी स्टॉपिंग इन बिटवीन और इट कैन गो टुवर्ड्स द एंडिंग. अगर जैसे कि मैं 8 देता, मेरा सीरीज यहीं पे रुक जाता, मेरा सीरीज यहीं पे रुक जाता, आगे नहीं जाता. तो यहाँ पे क्या, क्यों और कैसे करोगे? दैट्स वन गुड क्वेश्चन व्हिच आई हैव फॉर यू. क्या करोगे? यूजर से इनपुट लेंगे एंड वो ऑब्वियस बराबर है. देन करेंगे आई में चेंज करेंगे 1 to n करेंगे. इनपुट इज इक्वल टू पैटर्न का कोई भी नंबर, देन ब्रेक. हाँ, बट हाउ वुड यू ट्रैक?
Don't forget, you are working with a for loop, which is quite different now this time. So मेरा पहला question था, would the for loop would be used or while has to be in picture? सोचो एक थर्ड वेरिएबल अलग वेरिएबल लेके उसको ऐड करते जाएंगे क्या? Perfect. But मेरा question I think miss out किया लोगों ने. For loop और while loop पे shift करना पड़ेगा. For loop. Try करो. 5 minutes for this. Precisely 5 minutes for this. वरना मैं शुरू कर दूंगा. Let me start time पर. फिर बाद में public बोलता है अरे 5 मिनट नहीं हुआ. चलो. 5 minutes precisely given. Think. Get me answer. For loop या while loop पहला मेरा question तो वहीं से चालू होगा. For loop. ओके चलो अच्छी बात है. कैसे आएगा सोचो. Come on, people, start coding. Things are going to be interesting. एक्चुअली सर आउटपुट आ रहा है बट उसके बाद मतलब लूप एंड नहीं हो रहा है. कैन आई शेयर माय स्क्रीन? यस श्योर, गो अहेड. फॉर लूप है ना, क्योंकि ब्रेक भी करेगा. नेस्टेड फॉर लूप है, अंदर का ब्रेक होगा, बाहर का नहीं. हाँ वही प्रॉब्लम हो रहा है. मैं इसीलिए वेट कर रहा था. इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन अभी भी रहेगा, फॉर या while. 11 दिया तो ये भी प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए. ओके 11 11 11. ओके ठीक है. यहाँ पे ब्रेक होता है तो क्योंकि बाहर कंडीशन हम लोग ट्रैप कर रहे हैं, बट अंदर का क्या. You still have 1.5 minutes. K 1 1 6 I plus 1 K plus 1
end, but when we are stopping, Swati, because we haven't given as such where to stop. यूजर कोई भी नंबर दे सकता है, तो अंडर दैट केस क्या करोगे और कैसे हैंडल करोगे? वो कंडीशन डाली नहीं मैंने। सोचो सोचो सोचो। चलो, टाइम्स अप, माय जॉब। Okay, उससे पहले let me see one answer which I got. Even I k plus 1 and working with it, we still have a issue of this, how we will be stopping. That's one question which we have. So क्या करोगे, कैसे करोगे, किस तरह से operate करोगे? So be very very careful when you work with, be very very careful when you use this thing. तो थोड़ा आगे जाते हैं, let's try to work it out, let's try to operate it out. The people, please pay attention. Let's go. तो हम लोग को अब करना क्या? मैं फॉर लूप के जगह पे व्हाइल लूप यूज करना प्रेफर करूंगा इस तरह के केसेस में. k is equal to 1 accepted, very well people have targeted. I is equal to 1 to go with because 1 से शुरू हो रहा है. मैं j को भी आगे जाके चेंज कर सकता हूँ. तो करंटली लेट्स गो विद दिस while सर, लेकिन यूजर नंबर देगा ना, ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट एंटर n. तो ये यूजर एक नंबर दे देगा और हम लोग वहां से शुरू करेंगे. अब मेरा लॉजिक ये बोलता है while k is less than n. सर ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इसमें भी एक गड़बड़ होगा, इसमें भी एक गड़बड़ होगा. क्या क्यों, वो आगे मालूम पड़ेगा. करंटली अगर मैं बात करूं इसका कि हाउ वुड वी गो फर्दर, मैं while से ही चल रहा हूँ अभी भी. सॉरी, मैं while से ही चल रहा हूँ. So I'll say while I less than. अब सर, when we are supposed to stop 1 1 2 1 2 3 और सर I हर बार तो मतलब करना क्या है? That's a good question. क्योंकि इस बार पहली बार में 1 होना चाहिए, दूसरी बार में 2 होना चाहिए. तो ठीक है, मैं शुरू तो I से कर लिया है, but I should be less than what, if that is a question which we have. So I should be less than k. अगर मैं डाल के रख रहा हूँ, I'm not saying yes or no, I'm just putting it down. j is equal to 1 accepted नीचे, while j less than equal to I नीचे आओ, print mind it k. Similarly, and k plus equal to 1. Don't forget, j plus equal to 1. बाहर आने के बाद I जिसने पूरा कांड किया है प्लस इज इक्वल टू 1. ठीक है, पहले से इतना ले रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मतलब सर फॉर लूप को आपने while में कन्वर्ट किया, सिर्फ k का एक नया कंडीशन डाला. हाँ, लेट्स सी. मैं कह रहा हूँ लेट्स से 11. सर गया infinite because there is nothing, no logic which is accepting and going beyond. रुक जाते, लूप वापस जरा समझ लेते हैं. तो सर आपने k लिया, k1 है, आपने इनपुट n लिया, k लेस देन इक्वल टू n रहेगा तो आप नीचे आओगे. I ऑलरेडी मैंने 1 लेके रखा है, तो लेस देन इक्वल टू k है. ठीक है, वेल एंड गुड. बट सर वही तो नहीं हुआ. व्हाट इफ आई पुट n एंड नाउ प्ले. लेट्स प्ले विद दिस. सपोज मैं बोलूं अमर 10 तक सब प्रिंट कर. गया, लूप के बाहर जा रहा है, मतलब रुक तो रहा है बट 10 टर्म तक तो नहीं ले रहा है. while I j का कंडीशन, अब जरा कुछ चीजें समझना शुरू करते हैं. पीपल गोइंग स्लो नाउ. I 1 है माना,
n यूजर से लिया, माना k should be less than equal to n is what I have said. Printing, अब प्रिंटिंग में एक ट्विस्ट डाल देते हैं सर, क्या and k should be less than equal to n, मतलब सर k का कंडीशन भी आप इसमें डाल रहे हो। लेट्स प्ले दिस, 10 तक देखते क्या होता है। सर 1 से 10 आ गया, कांग्रेट्स, इफ दिस इज डन योर जॉब इज ओवर। सर क्यों? वी ऑल नो क्या करेंगे आप, लेट्स सी एंड हाउ इट वर्क्स। सर 14 दो ना, 1 1 2 3 I mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर कोई ऑड नंबर डाला बीच का तो I don't mind, let's put 18. So you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and it worked. So it's obvious question to understand कि सर ये चला कैसे, I mean what and how it worked on. चलो अब थोड़ा उसके concentrate कर रहा हूँ, let me try to work it out, let me try to operate it out to work with. So concept simple है, logic simple है, हम लोग let's work with it. Back screen change कर, zoom कर. Okay, so now when we tend to say, when we tend to operate, people please pay extra attention because we will be now concentrating on this code. So let me just put it properly so that आपके screen पे दिखे. Okay, people, extra attention to go for this. ये भी इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है क्योंकि जनरली पब्लिक नो दिमाग फोड़ी करता है फॉर लूप के पीछे, जबकि easier answer is possible using your while loop. तो कुछ चीजों में ना चूज करना सीखो. Sometimes right choice would help you to understand problem and simplify problem in the easiest way. To try to understand this, try to work with this. चलो, now people, let's get this thing clear. मैंने क्या किया, मैंने k लिया, that is 1, that is going to do the printing. I ठीक है 1 है, यहाँ पे एक नंबर लिया. Now consider the number जो आपने लिया है, that might be number 5. तो इनपुट जो मैंने दिया that is number 5 given. अब पहले मैं चेक कर रहा हूँ मेरा k जो इनिशियली मैंने 1 लिया है क्या वो 5 से कम? हाँ है, तो इनिशियली तो 1 ही है सर, ठीक है 1 है. चलो अब मैंने यहाँ पे और एक कंडीशन डाला, आई शुड बी लेस देन n, जो नंबर मतलब हर जगह पे कंडीशन में मैं n के पीछे ही पड़ा हुआ, तो ये वो भी तो 1 ही है सर, इनिशियली आपने खुद लिया है यहाँ पे दोनों को 1. गुड. उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कंडीशन हुआ, हु इज डूइंग एक्चुअल प्रिंटिंग सर ये, तो इस पे यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया, 2 में से एक कंडीशन दोनों देखेगा ये, j शुड बी लेस देन इक्वल टू i, ये तो वो स्टेपिंग के लिए था. तो दूसरा जो कंडीशन है, प्रिसाइजली स्पीकिंग दिस कंडीशन, दिस इज टू टर्मिनेट, क्योंकि अगर मैं ब्रेक भी करता तो ये वाइल लूप रुकता, बाहर के लूप को कौन करेगा या इस लूप को कौन हैंडल करेगा. तो दैट इज अ रीजन आई वर्कड इट आउट, दैट इज अ रीजन आई वर्कड इट आउट. ओके सर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये ऊपर का लूप उड़ा दूं तो क्या होगा? पता नहीं, चलो लेट्स ट्राई टू वर्क दैट आउट. null कर लेता हूं, and if I do that null I have to bring everything to a proper indentation. थोड़ा पेनफुल है मेरे लिए बट ठीक है, काम हो जाएगा. बट सर चलेगा क्या, वो क्वेश्चन तो मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ. चलो मतलब सर 1 मिनट समझने दो, आपने सीधा एक while लूप ले लिया, i लेस देन n डाला, j इज इक्वल टू 1 डाला, हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, हर इटरेशन के बाद ये रन कर रहा है, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंटिंग के बाद सर वापस मतलब ये while लूप के अंदर है या बाहर है, इट हैज टू बी इनसाइड. सो टेक इट. अब देखते हैं क्या होता है. दसफला सर 6 देता है सर, चल गया, रुको और नंबर 13 चल गया. So now external loop becomes useless. External loop becomes useless. ठीक है सर, बट ये चला कैसे? Okay. Just with I and j तुम्हारा काम हो गया, तो I am just eliminating one entire loop. तो तुम्हारा n raised to 3 का complexity n square पे आके मैं रुक गया. So अब अगर मैं बात करूं, सर क्या किया? I'm just
Increase the size of it. बहुत. Just a minute, guys. Would do. People. थोड़ा बड़ा कर देते हैं. Now, people, please pay attention how we are going to work. This is something which is important for us. तो यूजर ने जैसे हर बार होता है 5 दिया कंसिडर. क्या मेरा आई जो मैंने खुद 1 दिया है 1 लेस देन 5? यस, वेरी मच. जाने दो आगे. तो पहला कंडीशन यहाँ पे चेक किया, जे 1 से चालू किया, जे लेस देन इक्वल टू आई. ये जे और आई सिर्फ प्रिंटिंग का काम करे. प्रिंट क्या हो रहा है? के हो रहा है. तो मैंने प्रिंट 1 किया, नीचे आके वो जो के था जो 1 था उसको मैंने 2 कर दिया. उसके बाद जे तो ठीक है, वो तुम्हारा प्रैक्टिकली 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 का काम तुम्हारा आई और जे कर रहा है. फर्क है वहां पे प्रिंट इंस्टेड ऑफ 1 के 1 कर रहा हूँ, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6. टर्मिनेशन के लिए मैंने क्या यूज किया? अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल मैंने और एक नया चीज डाल दिया, के शुड बी लेस देन इक्वल टू एन वॉट एवर यू हैव गिवन. सेकंड थिंग, इवन आई भी मैंने एन से ही कम डाला. तो बढ़ के जब आई आगे चला जाएगा, देयर विल बी फ्यू ब्लैंक लूप्स. हम सर क्या ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. जस्ट टू वर्क फॉर यू गाइस, एंड ऑफ लाइन देयर विल बी फ्यू ब्लैंक लूप्स. सर मतलब देख लो. सो इफ आई पुट लेट्स से 23, ध्यान से देखो. डोंट यू थिंक यहाँ पे 2 एंड ऑफ लाइन दिख रहे थे? ये एक्स्ट्रा आएगा. But luckily, because we were just printing nothing over here and going to next line, वो दिख नहीं रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे. So even if I put, let's say 23, नहीं, let's put a odd number 17. वो दिख नहीं रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे. But ultimately ये internally और एक बार तो रन होगा. फर्क है, प्रिंटिंग नहीं होगा. सर प्रिंटिंग क्यों नहीं होगा? ऑब्वियस, इफ यू लुक एट योर कोड, तुमने अपने प्रिंटिंग को लॉक करके रखा है कि अगर तुम्हारा के का वैल्यू n से लेस हो या इक्वल टू हो तो ही चलेगा, वरना वो रुक जाएगा. दैट इज द वे वी वर्क विद दिस प्रोग्राम. इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन वे बिकॉज ये एक सीरीज बेस्ड प्रिंटिंग पे बात कर रहा है. ओके, तुम लोग को इससे अलग भी सताया जाता है, माइंड यू. द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद विल बी शिफ्टिंग टॉपिक. सो लास्ट क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक इफ यू कैन डू दिस. आई विल गिव यू एंटायर 10 मिनट्स फॉर बिल्डिंग इट. सर क्या करवाने वाले हो? ज्यादा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट काम करवाता ही नहीं मैं. सो लेट्स ट्राई टू वर्क विद दिस. इज वन ऑफ द क्वेश्चन इन Amazon इंटरव्यू राउंड्स. बेस्ट ऑफ लक, यू विल नीड इट. सर क्यों? कुछ नहीं करना है, सिंपल. बस ऐसे लोग ऑलरेडी नो स्माइल से गालियां दे रहे हैं कि बस नहीं करने हैं, बचा क्या है, जितना था सब तो कर दिया है. I mean, you have numbers, yes. We have center pyramids, yes. We have ABCD, yes. मतलब सर सिखा है उसमें से कुछ छोड़ा है आपने? बिल्कुल नहीं. ट्राई करो. No, everybody talk about dream company. I love to hear from students that this is my dream company, that is my dream company. एक छोटा सा ड्रीम का क्वेश्चन आता है. Have you thought about how much hard work would require? तो चलो, welcome to reality check. करिए. Giving you 10 minutes for handling this. Giving you 10 minutes for handling this, mind you. Just a minute. मेरा प्यारा सा क्वेश्चन अभी वापस आएगा. Would it be operated via for or would we require while? That's the first question you need to ask yourself. इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड पाइथन में while लूप से करो. फॉर लूप सिंगुलर पे चल जाएगा. फॉर लूप मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस पे नहीं चलेगा, उसका कंटेक्स्ट ही टोटल अलग आ जाता है. So try to work with while instead of for.
That is much easier to operate, believe me. Five minutes left. Be quick. अभी तक एक भी आंसर नहीं. क्यों भाई?
Sir, with the loop use of for loop, थोड़ा volume. with the use of for loop, I did this. Very good. But मतलब वो ORD कैरेक्टर का चेंज करने में थोड़ा तकलीफ आ रहा है. ट्राई कर, हो सकता है. इट इज पॉसिबल, नॉट टोटली इम्पॉसिबल. सिर्फ दिमाग लगा क्या क्यों और कैसे करेगा. ओके. ORD से चालू कर, अल्फाबेट का वैल्यू ले डायरेक्टली, और ORD से अल्फाबेट का क्लोजिंग वैल्यू. यानी कि तेरा अगर ई क्लोजिंग है तो ORD + 1 विल गिव मी ई का वैल्यू. बस उसे बराबर से प्लेस करके चालू कर. So 6 lines, fine. Work with 5 + 1, that is space. And I care. Okay. Still have a minute. Think. Dream job चाहिए ना बड़े कम. Last 10 seconds. Anybody? Chalo, my turn. Oh, there are for and while and other things coming in. Nice to see that. Okay, printing for it, working with a for another thing, ORD working with smart move. Good. Bhai, आगे जाते हैं. Let us try to work with now my turn. People, pay attention. I'll be straight away taking you to designing only. तो अब यहाँ पे concept wise पकड़ लो. क्या, क्यों और कैसे हम लोग कर रहे हैं. Let us try to work it. So
मैं एक सिंपल काम करने वाला हूँ। I1 होगा सर, वेरी गुड। IA एक ले रहा हूँ जो अल्फाबेट का काम करेगा, मतलब सर उसमें आप पहले से A स्टोर करो। तो एक I है जो 1 का काम करेगा, IA अल्फाबेट के लिए काम करेगा। ये दो चीज मैंने असाइन कर दी। दैट इज हाउ आई ऑपरेटेड, दैट इज हाउ आई वर्क विद। अब थोड़ा आगे का बात करते हैं जहां से सिस्टम चलेगा। अब सर स्पेस भी है ना, हाँ स्पेस भी है। तो इफ आई वांट आई कैन प्ले दिस वे जस्ट फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन। स्पेस वाइज मैं बोलता हूँ अमर 5 स्पेसेस देखे रख। तो IA स्पेस, दिस आर ऑल इनिशियलाइजेशंस डन। अब मैं क्या करूंगा, कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, पूरा लूप इटरेट करने हुए चलेगा। तो कहां से क्या, क्यों, कैसे, कितनी बार। इफ आई वांट आई कैन पुट अ फॉर लूप of let's say pass, people pay attention to this, in range range bracket 1,6। so मतलब सर आप 5 passes दे रहे हो अल्टीमेटली। लेट्स पुट इट P, पास नहीं दे सकता, कीवर्ड है सर। उसका काम क्या है, कुछ नहीं, ये 6 बार सिर्फ passes देने वाला है तुम्हें। अब पहला चीज फॉर S in range 1, स्पेस +1। सर ये ब्लाइंक स्पेसेस के लिए मैं इज्जत से एक एक भी दिखा रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई फैक्टर्स में भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। आई एम कंसीडरिंग यूजर इज गोना प्रिंट 1 स्पेस एट अ टाइम। सर डायरेक्टली करते हैं ना, आई डोंट माइंड दैट, यू कैन इवन प्ले दिस वे। तो हम लोग डायरेक्टली पहले स्पेस प्रिंटिंग का बात कर रहे हैं। तो एक ब्लाइंक स्पेस लो इनटू स्पेस जितने भी आपने दिए हैं। सर पहले 1 है, बट अगर मेरा सिस्टम देखो तो पहले के केस में अगर मैं बात करूं तो पहले 5 ब्लाइंक स्पेसेस है, मैं उल्टा जाऊंगा तो 5 ब्लाइंक स्पेसेस, बाद में नेक्स्ट लाइन एंड। सर ठीक है, ये तो पहला लाइन ब्लाइंक स्पेस प्रिंट किया ना, स्पेसेस, ठीक है। नेक्स्ट सर एज पर अवर थिंग 1 और A प्रिंट करना है हम लोग को। 1 और A प्रिंट करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास डेटा है। आई कैन यूज फॉर लूप इन दिस फॉर I और रादर फॉर J in range 1, I +1। नीचे you are not supposed to shift line, don't forget this, you are not supposed to shift line। पहला चीज हो गया। फॉर JA in range, सर अब वो तो सर अल्फाबेट है ना आपका, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, ORD ऑफ A, मतलब सर वो डायरेक्टली आस्क का वैल्यू लेगा। सर कहाँ तक जाना है, ORD ऑफ जो भी। अब अगर तुम लोग को अल्फाबेट के हिसाब से खेलना है, सो आई विल से ORD ऑफ अल्फाबेट IA में है, अल्फाबेट IA में है +1, +1 go down। so I'll be printing simple JA, don't forget you are not supposed to shift line, you're not supposed to shift line, and equal to। बट सर एक मिनट, वो ORD में है तो इसको कैरेक्टर बनाना है, कैर प्रिंट करेगा। सर ये पूरा राम कहानी के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है। ओके, let's try to see how things are going to work, let's try to see how things are going to operate। सर प्लस और एक क्वेश्चन है, ये एक बार नए लाइन में जाएगा उसके बाद स्पेस भी कम होगा ना? स्पेस माइनस इक्वल टू 1। सर आई भी कम होगा ना? नहीं, बढ़ेगा। सर आई ए के साथ क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। सो इसका लिखने का तरीका मेरा थोड़ा अजीब होगा, संभाल के। ऑफ I A
+1, watch it. कैर बराबर है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करो. वेटिंग. CHR ठीक है, इतना तो किया, चलो देखते क्या होता है. इतना तो किया, देखते क्या होता है. सर बैंड बजी पहले ही. ये ORD एक्सपेक्टेड कैरेक्टर बट लेंथ फाउंड 2. यहाँ पे कुछ तो उन लोग को गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे कुछ तो उन लोग को प्रॉब्लम हुआ है. रीजन इफ यू रियलाइज, तुम्हारा ये AORD बराबर है, यहाँ पे उन लोग को एरर आया. सो ORD ऑफ A व्हाट दे वांटेड टू गेट, ORD of IA which is already A, that is +1, उसमें कुछ एरर है. Expected a character but string, नहीं, string of length 2 is found. तो IA is A, that is for sure. So +1 ORD का वैल्यू निकाल रहा है. This has to be something dealing with JA. ORD का वैल्यू +1. ये एक सिंगल कैरेक्टर के लिए वर्क करता है, बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. Just let's try to work with this. सेकंड और थर्ड पास में इसको कुछ तो तकलीफ हो. ORD बट लेंथ 2 फॉर्म. Let's try to work it out. ORD will be working with ORD value straight away. मैं print कर रहा हूँ so that we can work it out. ORD of will be now working with IA, क्योंकि A में तो गड़बड़ होने का मुश्किल है. जो भी है गड़बड़ इसके ORD of IA में ही आएगा. Let's see. IA is taken as 5, and let me go down and check. ORD. Let's play this way. Done. ओके, अल्फाबेट्स हो गए. जो मैंने प्लस डाला था वो उसमें कॉन्कैट कर रहा था, वो हटा दिया. बट अभी भी इफ यू सी देयर इज अ हेल ऑफ अ इशू. स्पेस बराबर आ रहा है, पर ये तो भाई साहब जोश में हर बार 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है. लेट्स प्ले विद दिस. What we have initialized J is from 1 and we are going in terms of operation 1. एक से चालू करना. चलो अब देखते हैं. 16565, यानी कि जो भी आप तुम लोग का वैल्यू ले रहे हो, JA में जो वैल्यू जा रहा है वो एज इट इज हम लोग प्रिंट कर रहे हैं CHR होने के बावजूद. सो इफ यू रियलाइज, ये A तो ठीक है, मैं हटा रहा हूँ. प्रिंटिंग अभी भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है. सो व्हाट आई एम शिफ्टिंग, व्हाट आई एम टेकिंग अवे इज दिस. सिर्फ इतना रन करते हैं. 1A, 1 2 AB, 1 2 3 ABC, 1 2 3 4 ABCD, 1 2 3 4 5 ABCDE. सर कौन सा चीज क्या कर रहा है वो अभी तक सर के ऊपर से जा रहा है. ओके, पे अटेंशन. ये तो इनिशियलाइज किया, दैट इज 1. आई स्टार्ट करने के लिए IA स्टार्ट करने के लिए स्पेस 5 है. ये मेरा पहला लाइन का कैलकुलेशन था. तो दैट कैलकुलेशन सिंपली वर्क विद द फैक्टर ऑफ दिस. कि भाई अगर मैं ऐसे सोचूं अमर, तो मैंने कुछ इस तरह से कैलकुलेशन सोचा. 1 2 3 4 5. तो मैंने कैलकुलेशन में देख लो, मैंने इस तरह से सोचा. स्पेस अमर 5 है पहले लाइन. फिर अमर I 1 से चालू हो रहा है. IA A से चालू. A अल्फाबेट है, सिंगल कोट डाल दिया, मेरा काम डन. सो नाउ दैट इज डन. फॉर द नेक्स्ट लाइन मैंने कुछ इस तरह से किया. हाउ अवर लॉजिक वर्क. पूरा लूप 1 2 3 4 5 बार चलना चाहिए. तो मैंने एक फॉर डाल दिया. पीक इन रेंज
मैंने बोला 1 से लेके 6 तक चलने जाऊंगा, तो ये तुम्हारे पासेस का हो गया, पासेस का हो गया। उसके बाद यार अमर पहला लाइन प्रिंट करता है, पहला लाइन में 5 ब्लैंक स्पेसेस है। मैंने बोला अमर एक सिंपल है, प्रिंट कर, क्या कर, ब्लैंक स्पेस इनटू स्पेस प्रिंट कर, स्पेस 5 है इनटू 5, 5 ब्लैंक स्पेस आ गया, बट मेक इट अ पॉइंट कि वो नीचे ना जाए, हो गया, यानी करंट लाइन पे हो गया। सर इन दोनों का प्रिंटिंग, इसके लिए जे यूज करने पड़ेंगे मुझे, सो मैंने कहा फॉर जे इन रेंज 1, i+1, और अगेन वापस मैं प्रिंट तो करूंगा जे, और उसे भी बोलूंगा नीचे मत जा। तो अब जरा समझो, इसने 1 प्रिंट किया और रुक गया, ठीक है, मैंने और एक लूप यूज किया, रेंज। अब मैंने ये पहले मान के चला कि भाई मैं शुरू करने वाला हूं अल्फाबेटिक वैल्यू ऑफ ए से, ORD ऑफ ए, कॉमा, सर खत्म कहाँ करो, ORD वैल्यू ऑफ तुम्हारा IA है ना, IA +1, सर +1 क्यों, ए से ए बी दिखना पड़ेगा ना, तो मुझे ए बी में मैं ए प्रिंट करूंगा, ABC में ए बी प्रिंट करूंगा, सो दिस इज फॉर दैट, ठीक है। सो सर ये क्या प्रिंट करेगा, पहले लाइन के लिए तो मेरे दोस्त हम लोग ने CHR कैर में वापस कन्वर्ट किया, किसको, JA के वैल्यू को, और वापस उसे बोला नीचे मत जा। परफेक्ट, अभी तक सिर्फ तुमने ये 3 प्रिंट, यहाँ तक का लॉजिक समझा पीपल, थम्स अप इफ क्लियर। आधे लोगों के कैमरास बंद हो गए, क्या रे ब्रेक ले लिया क्या रे, अरे ब्रेक भूल गया आज भी। ओके, somebody keep on reminding me कि भाई ये है, मैं अपने फ्लो में जाता हूँ तो ब्रेक नहीं देता। पीपल कम बैक, एवरीबॉडी, सर्वेश, निशाद, मोहित, प्रथमेश या तो बहुत अंधेरी जगह पे है या तो उसने डीपी ब्लैक रखा है, आई डोंट नो, आई एम स्टिल कंफ्यूज विद इट। मैं चलो रे, इनविजिबल मोड से विजिबल मोड में आओ। ओके चलो, गुड टू सी पीपल आर बैक। ओके, सो नाउ एज वी वर्क विद, अब मेजर क्या है सर, नेक्स्ट लाइन के लिए देखो, तुम्हारा आई है ना, उसको +1 करना पड़ेगा, तुम्हारा IA है उसको भी +1 करना पड़ेगा, और जो तुम्हारा स्पेस है ना सर, उसको -1 करना पड़ेगा। चलो अगेन नाउ इसके पैरेलल, इस लूप के अंदर मैंने कहा स्पेस -=1, सर बराबर है, पहला आपने कर दिया, सर I 1 से बढ़ेगा, सिंपल है। सर पैसे करो, and that is more interesting for us, that is more interesting for us, sir क्यों, because that is ultimately what we gonna play। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत अलग करना पड़ेगा, IA इज इक्वल टू, प्लस मत करना, ORD वैल्यू, जो भी तुम्हारा ORD वैल्यू है ऑफ I ऑफ A, उसमें +1 किया, एंड सर कैरेक्टर लाना है ना, CHR, मतलब ओके सर ऐसे समझता हूं मैं, A है ना, कैपिटल A है, तो 65 होगा, +1 66 बनेगा, और वो मैं कैर में कन्वर्ट करने की वजह से आई एम स्टोरिंग B, यस, तो ये जो IA+1 है A का B हो गया। ये करने के बाद मैं वापस सीरीज ऊपर लेके जाऊंगा, ये तो इनिशियलाइज है, P का सेकंड लूप चालू होगा, इस बार इनटू स्पेस होगा, बट मेरा स्पेस ऑलरेडी अब 4 है, मेरा I अब 2 है, मेरा IA अब B है, तो J जाएगा 1 से 1 2, गुड, मेरा J A जाएगा A से ORD वैल्यू ऑफ, सो B ऑलरेडी है, तो A B, कांग्रेट्स। उसके बाद वापस नीचे आएगा नेक्स्ट राउंड में 3 C 3, सो वापस जब ऊपर जाऊंगा 1 2 3 1 2 3 A B C, this is what you can do। I'm not saying using for is the wrong way, I'm not saying for use करना नहीं है,
बट यस आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि यहाँ पे while loop ज्यादा बेटर कंट्रोल देगा कंपेयर टू अदर टेक्निक्स. सो आई हैव यूज्ड while loop as such. मैंने दोनों तरह से दिखाया, तुम लोग को स्क्रीन पे भी दिखाया एंड तुम लोग को नॉर्मल इस पे भी दिखाया. आई फील पीपल शुड बी वेरी क्लियर विद दिस. Clear with the working? Clear with the working? Be quick, be quick. देख लो, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो. Spend some time with this code. इसलिए मैंने वापस लिखा. Everybody clear? Which question? Which queries? Sir, why we initialize space equal to 5? Why we initialize space equal to 5? नवनाथ, मेरे दोस्त, पहले लाइन में कितने स्पेसेस है? 5 है, वो तो दिख रहा है सर, लेकिन अपने को 1 to 5 प्रिंट करने का है ना लास्ट लाइन में. मेरा क्वेश्चन अभी भी रहा. तेरा क्वेश्चन क्या है? स्पेस को इनिशियलाइज 5 क्यों किया? यस. कितने स्पेसेस दिख रहे हैं? 5. तो मैंने क्या किया, जो तेरा ब्लैंक स्पेस था इनटू स्पेस मारा, तो पहली बार 5 होगा, फिर स्पेस को जब आप कम करोगे तभी 4 होगा, तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? 4 बार होगा. तो स्पेस का काम स्पेस प्रिंटिंग ही है. आई का काम नंबर प्रिंटिंग, आई ए का काम अल्फाबेट प्रिंटिंग है. दैट इज हाउ आई वर्क. सर तो स्पेस इक्वल टू 4 करेंगे तो वो भी रन हो जाएगा ना? हाँ, 4 होगा तो ये 4 देगा, फिर तेरा पैटर्न आगे पीछे हो सकता है. बिकॉज स्पेस का काम जैसे मैंने रखा है, स्पेस सिर्फ स्पेस प्रिंटिंग का ही काम कर रहा है यहाँ पे. समझा? पैटर्न में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए पूछा मैं. पैटर्न में यू हैव टू सी कि तूने स्पेसेस कैसे दिया है. कुछ ज्यादा प्लस माइनस करेगा तो अपना फायदा सिर्फ एक ही है, क्योंकि तेरा पैटर्न आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है और तू माइनस कर रहा है, तो ये पूरा तेरा जो पैटर्न है ना, 2 ब्लॉक से आगे या 2 ब्लॉक से अंदर चला जाएगा. I'll explain this way. ये देख, if I go on my coding bench, अब अगर जोश में आके मैं बोलूं अमर यार स्पेस ना आज मूड अच्छा है 15 करके रख, तो 15 डाल रहा हूं, तो तेरा पूरा कोड 15, यू रियलाइज ये कितना अंदर चला गया. 15 यहाँ पे आया. अगर यही चीज मैं बोलूं यार अमर इसको 20 करूं, तो डजेंट मैटर, बिकॉज बाकी का जो अपना कैलकुलेशन है वो उसे संभाल रहा है. चल मैं सीधा 30 कर देता, वो एग्जैक्ट नियर अबाउट सेंटर पे आके खड़ा रह जाएगा. समझा? हाँ, यहाँ पे मार कब खाएगा, अपना गड़बड़ क्या होगा, अगर जोश में आकर बोलता सर 1 ही कर देते ना, छोड़ो ना, अब बैंड देख गया, बिकॉज एक स्पेस हुआ, उसके बाद तेरा पैटर्न हिल गया. बढ़ाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, घटाएगा तो प्रॉब्लम होगा, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस बिलो 4. 5 तक मैंने एग्जैक्ट दिया है, तो वो एंगल में आ रहा है और कॉर्नर में आ रहा है. ये देख, ये 5 मतलब खत्म, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है. ये ऊपर 5 ब्लैंक स्पेसेस है. अब समझा लॉजिक? यस सर. एवरीबॉडी क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो इमेजिन करो आज पूरा दिन हम लोग ने सिर्फ लूप ही किया. आई मीन देयर इज नथिंग न्यू डन, बट अब दिमाग खुला. जब सडनली इंटरव्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आया ना, तभी अपना बैंड बचता है कि अरे ये क्या है, कैसे है. माय सिंसियर एडवाइस फॉर द डे वुड बी सिंपल. हर क्वेश्चन जो हम लोग ने लिया है, रीसॉल्व इट without looking at it. So I don't want you to ratify those things, but I definitely want you to go through, understand and work. आज I'll stop, मुझे डेटा स्ट्रक्चर चालू करना था, but it doesn't make a sense. So आज कुछ ज्यादा ही तुम लोग की बैंड बची है.
back to back, we have series of programs. So I would request people to go through this thing, shanti se samjho, and then start working on it. So tomorrow when we start, मैं data structure से शुरू करूँगा. So tomorrow start to end एक ही data structures पे हम लोग concentrate करेंगे, that is list, variation of a list and list programming. सर बाकी कितने हैं? वैसे 4 डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें से लिस्ट और टपल पहले दिन हम लोग टारगेट कर लेते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो आई शुड बी मेकिंग यू प्रिपेयर टू दैट लेवल. फिर धीरे धीरे थोड़ा थियोरी में एंट्री करेंगे विद ट्राई कैच, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड अदर थिंग, देन विल कम बैक टू normal stuff. So that is how we will be working for the day. Everybody clear? Any doubt, any query, anyone? Okay, chalega. So thanks guys, see you tomorrow. Shalom. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.